So welcome back all of you, and these are the essays which we are going to discuss today. The broad topic is nature versus nurture. Nature versus nurture. So you know what is nature? Nature is the genes, what we get from our parents through the genes, the characteristics we are born with. That is nature. That is what nature refers to. And nurture is the bringing up. In Hindi we say parvarish, and the external things which influence the characters of a person, characteristics of a person, the traits of a person, personality of a person. So when you go through when you read the topic, you will understand better what I mean by nature versus nurture. Nature versus nurture means what has more role, whether the genes are more responsible for what we have, what we are today, or whether it is the upbringing and our environment, our surroundings, which have a better role on our personality, right? So the question is, some scientists believe that studying the behavior of 3-year-old children can tell which children will grow up to be criminals. To what extent, in your opinion, is crime a product of human nature, or is it possible to stop children from growing up to be criminals? Now, when you translate this topic, you'll come to know कुछ साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि 3 साल के बच्चे को देख के, 3 साल के बच्चों को देख के बताया जा सकता है कि कौन सा बच्चा बड़े होके क्रिमिनल बनेगा. अब आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से जो क्राइम है, जो बच्चे क्राइम करते हैं, जो क्राइम है बेसिकली, क्या वो ह्यूमन नेचर का नतीजा है, क्या वो इनबॉर्न है, क्या वो जन्म से आ जाते हैं अंदर ट्रेट्स, और क्या ये पॉसिबल है कि हम बच्चों को क्रिमिनल होने से, बड़े होके क्रिमिनल होने से बचा सके? ठीक है. So now they're asking you, which do you think has a more role, whether it is nature or nurture, on what the person will be when he grows up. ठीक है, समझ आ गया टॉपिक? So let us see. Yes, ma'am. Let us see. इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ. And I think I have changed this essay from जो book में है, थोड़ा सा मैंने rewrite करा है पिछली बार. I'm not sure. I don't have the book with me and I'm very forgetful now. But you can just compare it with the book. I'll be sharing this file with you and let me know whether it is different or the same. Some scientists are of the opinion, देखो पहले how you write the introduction. Paraphrase this. Some scientists believe. Some scientists are of the opinion. You can also make it the passive. It is believed by some scientists that. ऐसे लिख सकते हो. Some scientists are of the opinion that hereditary characteristics are responsible for the person's temperament and hence future career. तो यही बोला ना उन्होंने कि 3 साल का बच्चा देख के बता सकते हो कि बड़ा होकर क्रिमिनल बनेगा. तो यही कह रहे हैं ना वो लोग कि जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमारे जीन्स में हमें मिले हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे टेम्परामेंट के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए, कि हम क्या बनेंगे बड़े होकर, फ्यूचर करियर के लिए. ठीक है. I believe that while genes do play a role, the primary determinant is nurture. And what is nurture? फिर मैंने हाइफन डाल के डाला है एजुकेशन एंड. ठीक है. तो एक्सटर्नल नर्चर को मैंने प्राइमरी डिटर्मिनेंट माना है. मैंने बोला है कि genes do play a role. I believe that while genes do play a role, the primary determinant is nurture, which is education and bringing up. तो ये समझ आ गया आपको introduction, how a 2-sentence introduction, answering the topic and telling the examiner what you are going to write in the essay would fetch you a 7 or more than 7. Yes, ma'am, 7 से कम तो होगा नहीं होगा. देखो अभी कल बड़ा promising, देखो 3 बच्चों का रिजल्ट, ओवरऑल they were 7.5 in writing.
7.5 in writing, and one of them has given a very clear-cut feedback in the audio that she just used the format. बिल्कुल उसी वे में लिखा है, ठीक है. और इसमें हमने क्या करा है, एक सेंटेंस में पैराफ्रेजिंग कर दिया है और एक सेंटेंस में बता दिया है जो हमसे पूछा गया था. अब हम उसको अपनी बॉडी, पूरे ऐसे की बॉडी में सपोर्ट करेंगे, ठीक है. It has been well researched that the way a child is nurtured is a key factor in shaping his or her personality and several behavioral characteristics. इस बात पे बड़ी रिसर्च की जा चुकी है कि जिस तरीके से बच्चे को नर्चर किया जाता है, नर्चर मीन्स जिस तरह से उसको पाला जाता है, वो एक की फैक्टर है इन शेपिंग हिज और हर पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी को शेप करने में और उसके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को शेप करने में, ठीक है. This is done by the family in the first few years of a child's development. अब जो नर्चर है वो क्या कौन करता है, परवरिश कौन करता है, फैमिली, इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट. और पहले कुछ सालों में ही बच्चे की डेवलपमेंट के पहले कुछ सालों में की जाती है. एंड देन लेटर, उसके बाद देयर आर अदर इन्फ्लुएंसेस लाइक दैट ऑफ द सोसाइटी, टीचर्स एंड फ्रेंड्स. तो ये जो सोसाइटी के इन्फ्लुएंस है, टीचर्स के इन्फ्लुएंस है, फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस है, वो तो बाद में आते हैं. पहले कुछ साल पेरेंट्स ही उनको शेप करते हैं, नर्चर करके बच्चे की डेवलपमेंट को. Moreover, children imitate what they observe. और second thing is कि बच्चे जो है वो imitate करते हैं, वो क्या देखते हैं. और अगर उनके आसपास positive role models हो, and if they have positive role models around them, it is highly unlikely that they will deviate from the right path. बहुत unlikely है कि वो right path से भटकेंगे, deviate करेंगे means कोई और रास्ता ले लेंगे right path के अलावा. समझ आ गया? इस बारे में रिसर्च किया जा चुका है कि पेरेंट्स जो है वो नर्चर जो है वो ज्यादा रोल प्ले करती है. और पेरेंट्स पहले कुछ सालों में पेरेंट्स जो बच्चे को परवरिश देते हैं उस हिसाब से बच्चे की डेवलपमेंट हो जाती है, और जो बाकी के फैक्टर्स हैं वो बाद में आते हैं. और फिर मैंने ये लिखा है कि मोर ओवर चिल्ड्रन इमिटेट करते हैं, वो क्या देखते हैं. अच्छा, अगर कोई बच्चा किसी चोर डाकू के घर में पैदा हुआ है, वो क्या देख रहा है अपने आसपास, नेगेटिव रोल मॉडल्स, ठीक है. डांस देख रहा है, पिस्टल्स देख रहा है, देख रहा है, और ऐसे. तो वो फिर बड़ा होके वैसा बन सकता है ना. तो इसका क्या है मतलब है, ये नर्चर है. अगर उसकी नर्चर खराब है तो वो बड़ा होके गलत काम कर सकता है, ठीक है. मैम अनलाइकली का क्या मतलब होता है? अनलाइकली मीन्स कि नहीं, लाइकली नहीं है, पॉसिबल. लाइकली मीन्स आई एम लाइकली टू डू दिस, मैं ये करूंगी, ज्यादा चांस है. अनलाइकली मीन्स नहीं चांस है कि वो डेविएट करेगा राइट पाथ से. अगर पॉजिटिव रोल मॉडल है तो पॉजिटिव चीजें इम्बाइब कर लेगा, अगर रोल मॉडल नेगेटिव है तो नेगेटिव चीजें इम्बाइब कर लेगा. समझ आ गया पैरा? ठीक है. यस मैम. Further, more children can rise above the gene pool. अब मैंने ये भी इसी के एक्सटेंशन में लिखा है फर्दर मोर डाल के. इसका मतलब मैं और एक पैरे में सपोर्ट करूंगी कि नर्चर का ज्यादा रोल है, परवरिश ऐड कर रही हो आप इसमें. हाँ, ऐड कर रही हूँ. पहले पैरे में मैंने नर्चर के रोल के बारे में लिखा है, ठीक है. अब इसकी जो फर्स्ट लाइन है, मैंने ना टॉपिक सेंटेंस अच्छा बनाया नहीं है इसमें, मैंने वैसे सीधा लिख दिया है, पर टॉपिक सेंटेंस लिखना चाहिए ताकि मैं एग्जामिनर को फर्स्ट सेंटेंस में बता दूं कि मैं इसमें नर्चर का रोल के बारे में बता रही हूँ कि वो ज्यादा है. तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, देयर आर मेनी रीजंस. लिखा ही नहीं जाता यार मेरे से, क्या है. देयर आर
अब देखो, डैड की जगह चिल्ड्रन नहीं आ सकता है, क्योंकि बहुत जब हम जनरल बात कर रहे हैं तो हम एक बच्चे की बात थोड़ी हाँ सुन। इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ इट इज लुकिंग बेटर बिकॉज द टॉपिक सेंटेंस इज देयर। और ये जो 3 बच्चों के 7.5 आए हैं, इनको मैंने टॉपिक सेंटेंसेस पे फोकस कराया है व्हाइल गिविंग देम फीडबैक्स। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस इज व्हाट सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ व्हिच विल टेल व्हाट द पैराग्राफ इज गोइंग टू होल्ड। ठीक है, तो ये जरूर डालो, क्योंकि इससे ना पैराग्राफ का थीम सामने आ जाता है। इस पैराग्राफ का थीम यही है ना कि हमने नेचर के रोल की, नर्चर के रोल की बात करी है। फिर फर्दर मोर से तो क्लियर हो गया कि नर्चर के रोल की और बात करनी है। चिल्ड्रन कैन राइज अबव द जीन पूल एंड राइज टू ग्रेटर हाइट्स। बच्चे अपने जीन पूल से बाहर निकल के और भी ऊपर जा सकते हैं। इवन इफ ए चाइल्ड इज बोर्न टू क्रिमिनल पेरेंट्स, अगर बच्चा क्रिमिनल पेरेंट्स के घर में पैदा हुआ है, बट ब्रॉट अप अवे फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन, ही विल नॉट ग्रो अप टू बी अ क्रिमिनल। तो अगर बच्चा, चाहे बच्चा क्रिमिनल पेरेंट्स के घर में पैदा हुआ है, पर अगर उसको अच्छी परवरिश दी जाए, वो बड़ा होकर क्रिमिनल नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? टू एड टू इट, इन मेनी कंट्रीज, बहुत सी कंट्रीज में टीचिंग मॉरल एंड सोशल वैल्यूज इज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन सिस्टम। अब बहुत सी कंट्रीज में मॉरल एजुकेशन, मॉरल साइंस की क्लास होती है, उसमें होती है। तो ये एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है सोशल वैल्यूज और मॉरल एजुकेशन टीच करना। दिस मेक्स द चिल्ड्रन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स स्टार्टिंग एट एन अर्ली एज, कीपिंग देम अवे फ्रॉम डेविएंट एंड क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कह दिया कि अगर बच्चे को माहौल से अलग ले जाके पाला जाएगा तो वो अच्छा इंसान बन सकता है बड़ा होके। और दूसरा मैंने कह दिया है कि ये जो इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी सोशल एंड मॉरल वैल्यू सिखाई जाती है बहुत सी कंट्रीज में, और इससे बच्चों को एथिक्स की रियलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स की रियलाइजेशन बहुत पहले से हो जाती है, और वो डेविएंट बिहेवियर और क्रिमिनल बिहेवियर से दूर रहते हैं। एडमिटेडली, अब मैंने एडमिटेडली करा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं क्या डालूंगी, कि हमें जो नर्चर का, जो नेचर का रोल है उसके बारे में डालूंगी। ठीक है, admittedly there are examples of children born in families of criminals growing up to be criminals. However, there are several factors that this can be attributed to, like the lack of positive role models, negative conditioning of the child's mind during the developmental stages, physical and mental abuse in childhood, etc. Also, it is a fact that crime is a product of the circumstances of a person. Poverty, illiteracy and unemployment are the root causes of crime. तो मैंने जो पूरा इससे यही लिखा है कि नर्चर का रोल ज्यादा है, और मैंने नेचर के रोल के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा है कि एग्जांपल्स है बच्चों की कि जो क्रिमिनल पेरेंट्स के घर में पैदा हुए वो क्रिमिनल्स बने हैं, पर उसमें भी नेचर का रोल इतना नहीं है। बहुत से फैक्टर्स हैं जिनका कंबाइंड रोल है, क्योंकि उनके आसपास कोई पॉजिटिव रोल मॉडल नहीं है। पहला मैंने ये बता दिया, लैक होती है, कमी ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल्स। फिर एक उनकी नेगेटिव कंडीशनिंग है उनके माइंड की डेवलपमेंटल स्टेज, उनको ऐसे कंडीशन किया जाता है कि ये क्राइम है, ये तो करना ही है, मतलब इसके बिना आप एंजॉय लाइफ में कुछ आपको मिल ही नहीं सकता। अब जैसे अब जो वॉर प्रोन कंट्रीज है, वहां पे छोटे छोटे बच्चों को गन्स वगैरह पकड़ा के सिखाते हैं, तो उनको लगता है कि दिस इज नेचुरल, हमें हमें ये सीखना ही है। तो ये नेगेटिव कंडीशनिंग हो जाती है ना माइंड की डेवलपमेंटल स्टेजेस में। फिर कई बच्चों का फिजिकल अब्यूज और मेंटल अब्यूज होता है यंग होते हुए, तो फिर वो भी वो नेगेटिविटी उनके मन में आ जाती है। फिर मैंने ये भी लिखा है कि ये भी जो क्राइम है वो बाई इट्स सर्कमस्टांस का बाई प्रोडक्ट है। अगर पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इनकी वजह से क्राइम होता है, ना कि जीन्स की वजह से। ठीक है, तो सम अप, मैम रोल ऑफ नेचर इन डिटर्मिनिंग द बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड कैन नॉट। अब नेचर का रोल तो है, आप ये करो कि नेचर का रोल कहां तक सीमित है, लुक्स तक, बालों का रंग, हाइट, ठीक है, इन चीजों में नेचर का रोल सीमित है। पर जो 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 पर्सनैलिटी है पर्सन की, उसमें नर्चर का रोल ज्यादा है। ये समझ आ गया आपको पॉइंट? ऐसे Yes, लिखो। ma'am. यस मैम। मैम एक बात पूछनी थी कि जो हम इस पैराग्राफ में एडमिटेडली वाला पैराग्राफ जरूरी हमें डालना है, या हम लोग इसके बिना भी हम लोग इसको सम अप कर सकते हैं? अगर आप यहाँ लिख रहे हो कि उसका रोल ज्यादा है, तो आपको जिसका कम रोल है उसको एक पैरा तो देना पड़ेगा ना।
तो मैम ये हर पैसेज के लिए मैंडेटरी है कि जो हमें अगर जिसको हम कम सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में हमें लिमिटेड लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है? तो जरूरी है, अगर आप ऊपर लिख रहे हो कम सपोर्ट कर रहे हो, अगर आपका ऐसे ऐसा नहीं होता कि किसका ज्यादा रोल है, अब उन्होंने आपसे पूछा किसका ज्यादा रोल है, आपने बोल दिया इसका ज्यादा रोल है, तो कम वाले को भी तो पैरा देना पड़ेगा ना। पर कई टॉपिक्स है जिसमें आप वन साइडेड गए हो, आपको कुछ पूछा है, फिर आपको पूछा इज दिस ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, आप लिखते हो इट्स ए पॉजिटिव डेवलपमेंट, फिर नेगेटिव का पैरा बिल्कुल नहीं देना। ओके, समझ गए? ये डिपेंड करता है आपके एस्से की रिक्वायरमेंट पे, ये समझने वाली बात है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, आप गलती करोगे ही नहीं इसमें, हमें ये पैरा देना है कि नहीं। ठीक है? Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, there is a line in second paragraph in which admittedly, जहाँ आपने लिखा हुआ है there are factors, however के बाद there are several factors, यहाँ पे there are several other factors आएगा और other नहीं आना चाहिए। अदर की जरूरत ही नहीं है। Okay. देखो मैंने लिखा है कि एडमिटेडली बहुत एग्जांपल्स हैं उन बच्चों के कि जो क्रिमिनल फैमिली में बॉर्न हुए हैं और बड़े होके भी क्रिमिनल्स ही बने हैं, पर मैंने कहा उसके लिए तो बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है? और वो है कि पॉजिटिव रोल मॉडल्स नहीं है, नेगेटिव कंडीशनिंग है, एंड फिजिकल मेंटल अब्यूज है, ये सब चीजों की वजह से वो बच्चे वैसे निकलते हैं बड़े होके, नॉट जस्ट बिकॉज दे आर बोर्न इन क्रिमिनल फैमिलीज। Okay. ठीक है? और मैम यहाँ पे डिस्पाइट और बिसाइड कुछ इस तरह का वर्ड भी आ सकता है एज हाउएवर की जगह पे? देखो मैंने तो उसके अगेंस्ट जाना है ना, जो मैंने ऊपर वाली लाइन बोली है उसको रिफ्यूट कर रही हूँ एक तरह से। उसके अगेंस्ट जाना, राइट? हाँ, पर तो फिर हाउएवर ही आएगा ना। ओके मैम, थैंक यू। Conclusion: to sum up, the role of nature in determining the behavior of a child cannot be ignored, but it is the way the child is nurtured that shapes the future behavior and personality, thus ascertaining that it is possible to prevent children from growing up to be criminal. मैंने वही चीज दोबारा लिखी है, कुछ नया नहीं लिखा। One of the students asked me today morning that conclusions में problem आती है, nothing new is to be given in the conclusion. What you have written earlier, you just have to repeat that. I hope that is clear. Okay. Now this is another essay which is also based on the broad topic of nature versus nurture. Okay. Some people say that every human being can create art. Example painting. Art का इन्होंने एक example दे दिया, but कोई और example भी लिया जा सकता है. Others think that only the people born with the ability can create art. Discuss both views and give your opinion. कुछ लोग कहते हैं कि every human being art create कर सकता है, and बाकी कहते हैं कि सिर्फ वही लोग art create कर सकते हैं who are born with the ability. आपको समझ आ रहा है ये नेचर वर्सेस नर्चर का ये टॉपिक? तो जैसे मैम सॉरी टू यस मैम, कुछ लोगों के अंदर इनबॉर्न होती है मैम कुछ चीजें, और कुछ लोगों की प्रैक्टिस के साथ चीजें हो सकती है, तो ये भी नेचर। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, थोड़ा जूम निकाल देंगे क्या? बड़ा करूं? जी जी। ओके ओके। ठीक है? जी मैम। Okay. It is believed by some that artistic ability is inborn. मैंने उसी की paraphrasing करी है. Some people say it is believed by some. ठीक है? That artistic ability is inborn. That every human being can create art. का मतलब क्या है कि artistic ability inborn है. ठीक है? Whereas others say that such a talent can be acquired by training and hard work. और बाकी कहते हैं कि ये जो talent है वो training से और hard work से acquire किया जा सकता है. समझ आ गया? Yes, ma'am. इसी की पैराफ्रेजिंग है. This essay intends to analyze both perspectives. ये discuss essay की typical line जो मैं लिखवाती हूँ. In this essay I'll discuss both views. This essay intends to analyze both perspectives. I personally believe that artistic knack क्या होती है? Ability. इसमें K silent है पहला. Is a combination of both talent and training.
कि आर्टिस्टिक एबिलिटी कॉम्बिनेशन है टैलेंट की और ट्रेनिंग की। समझ आ गया आपको? Is it mandatory to write that line? This essay intends to analyze both perspectives. Oh no, it is not mandatory. Because your whole essay will tell the examiner कि आप discuss essay को ही handle कर रहे हो। अगर आपने देखो आपने यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस there are many reasons why some people करके लिख दिया ना, तो आपने एग्जामिनर को बता दिया कि आप फर्स्ट साइड ऑफ पीपल की दे रहे हो। फिर सेकंड है those who say that anyone, ये दूसरे लोगों की है, समझ गए? फिर तीसरा पैरा आपका I believe that in my opinion, ये तीसरा पैरा हो गया। तो आपने बता दिया डिस्कस इससे है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। मैं क्यों लिखवाती हूँ ये लाइन, में क्यों लिखवाती हूँ मैं इसका रीजन भी आपको बता रही हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं डिस्कस ऐसे का टेम्पलेट उठा के, अभी हमारे स्टूडेंट 7.5 बैंड लाए हैं राइटिंग में, यही टेम्पलेट और उसकी ऑडियो में मैसेज है कि मैंने कॉपी पेस्ट करा टेम्पलेट। ठीक है, जो बच्चा 4.5-5 पे है ना, वो भी 6 ले आता है अगर वो टेम्पलेट को ठीक से उठा लेता है। अब टेम्पलेट को ठीक उठाने से अगर उसने ये लाइन ठीक नहीं उठाई, ये नहीं लिखी सपोजिंग, और यहाँ पे टॉपिक सेंटेंसेस में थोड़ी बंगलिंग अप हो गई, तो उसका पूरा फॉर्मेट चला जाता है और बैंड नहीं आते। ये लाइन लिखने से आपने यहाँ पे एग्जामिनर को बता दिया कि आपको डिस्कस ऐसे समझ आ गया, आप डिस्कस ऐसे लिखने वाले हो। Okay. ये थोड़ा सेफ हो जाता है फॉर द एवरेज स्टूडेंट। Okay, ma'am. आपने बोला मैंडेटरी, तो डेफिनेटली नॉट मैंडेटरी। Okay, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. So the main reason, अब ये वाला आपका आ गया है, I believe that artistic knack is a combination of both। मेरा मानना, ना मैं फर्स्ट साइड के साथ हूँ ना मैं दूसरी साइड के साथ हूँ, मेरा मानना है कि कॉम्बिनेशन है इनबॉर्न टैलेंट का और ट्रेनिंग का। देखो गा तो कोई भी सकता है, ठीक है, पर कई लोग बाथरूम सिंगर्स होते हैं और कई लोग बहुत अच्छा गा लेते हैं। अब ये जो बच्चे छोटे छोटे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में आ रहे हैं, या इवन जब आपने कल इंडियन आइडल देखा होगा, कौन जीता वैसे बाय द वे? Who won? I didn't Pavandeep. Pavandeep won? Okay. Yes, ma'am. Okay. He deserved it. Really talented. Yes, है ना? really तो talented. बाकी भी सारे He could बहुत- play everything. Yeah. Okay. Okay. So जो है ना इनबॉर्न, अब छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा गा लेते हैं, वो इनबॉर्न ही है थोड़े हद तक। तो आप किसी को भी ट्रेन करके अच्छा सिंगर नहीं बना सकते हो, उतना अच्छा, मतलब अच्छा बना सकते हो, उतना अच्छा नहीं बना सकते। यू गेट माई पॉइंट? ठीक है, तो ये मेनली मेरा कहना। अब बहुत से लोग हैं, द मेन रीजन व्हाई सम पीपल होल्ड द ओपिनियन दैट आर्ट इज अबाउट नेचुरल एबिलिटी इज दैट सम पीपल आर जस्ट इनेटली गुड। इनेटली मींस इनबॉर्नली गुड। छोटे से होते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं। दे शोकेस सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स at such a young age that leaves little doubt that they had such मैम शोकेस मतलब क्या? they showcase they show, they have showcase, just a word, showcase, दिखाते हैं इतना अच्छा टैलेंट। ठीक है, they showcase such extraordinary talent at such a young age। टैलेंट ही enough है, टैलेंट अनकाउंटेबल है, टैलेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। They showcase such extraordinary talent at such a young age that leaves little doubt that they had such abilities since birth. History is full of examples of child prodigies like Mozart। ये ना Mozart है, पर इसकी pronunciation है Mozart। यहाँ पे त की pronunciation है, I don't know कहाँ से आई है, पर वो है। Okay? And examples of child prodigy। Prodigy क्या होता है पता है आपको? No, ma'am. I'll share and I'll prodigy होता है young person who is unusually intelligent or skillful for their age। A child, an infant prodigy, a musical prodigy। Mozart की देखो एग्जांपल यहाँ पे भी है। Mozart was an infant prodigy composing music at the age of 4। 4 साल की उम्र में वो म्यूजिक कंपोज कर रहा था। प्रोडिजी हुआ ना, और इनबॉर्न टैलेंट हुआ ना उसमें, कोई डाउट रहा इसमें? The 12-year-old prodigy will play America's reigning chess champion next week। तो 12 साल का बच्चा चेस
चैंपियन अगले हफ्ते खेलेगा, ठीक है। वर्ड ओरिजिन कहाँ से बना है? Latin word से है prodigium, that is potent, extraordinary, considered to be an omen denoting something extraordinary. Okay, चलो anyways, तो prodigy का मतलब clear हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. History, like Mozart, in addition, they say that art is valued precisely because people feel that not everyone can make it. और फिर दूसरा रीजन है कि आर्ट की वैल्यू, आर्ट को वैल्यू ही हम क्यों करते हैं? इसीलिए वैल्यू करते हैं ना कि लोगों को पता है कि हर कोई आर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आर्ट इज वैल्यूड प्रिसाइजली बिकॉज पीपल Ma'am, precisely means? प्रिसाइजली मीन्स एग्जैक्टली, मतलब इस वजह से, अगर हमने पिन पॉइंट करना है रीजन किसी चीज का, प्रिसाइजली, ठीक है, बिकॉज पीपल फील दैट नॉट एवरीवन कैन मेक इट, ठीक है। On the other hand, those who say that anyone can produce art by practice and training give the following reasons. दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं कि कोई भी आर्ट प्रोड्यूस कर सकता है प्रैक्टिस से, ट्रेनिंग से, वो रीजंस क्या देते हैं? फर्स्ट, दे से दैट had this not been the case, कि ये ना होता, ये केस ना होता, there would be no art schools and art and fine art would not exist as subjects. तो कहते हैं कि अगर जो कहते हैं कि एनीवन आर्ट प्रोड्यूस कर सकता है, वो इसलिए कहते हैं कि अगर ये नहीं होता तो फिर आर्ट स्कूल क्यों बनाए? आर्ट स्कूल तो इसलिए बनाया ना कि लोगों को आर्टिस्ट बनाना है हमने, जिनमें ये टैलेंट नहीं है उनमें ये टैलेंट डालना है। अगर ये डालने का स्कोप ही हम निकाल दें तो फिर ये स्कूल्स ही ना होते, आर्ट एंड फाइन आर्ट सब्जेक्ट ही ना होते। सेकेंडली, दे साइड द डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट ओवर टाइम। फिर वो एग्जाम्पल्स देते हैं ग्रेट आर्टिस्ट की, जिनके शुरू के काम इतने अच्छे नहीं थे पर बाद में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे। The only thing that separates most of these artists' earlier works from their latter works is practice, and yet in most cases the latter works are valued much more highly. ठीक है, अब देखो उन्होंने शुरू में जो कोई पेंटिंग्स बनाई है वो इतनी अच्छी नहीं थी, जो बाद में करी है वो बहुत अच्छी थी उनको, तो इसका मतलब आर्ट को डेवलप किया जा सकता है ना विद ट्रेनिंग। People might not even consider some of these artists talented if they look at their initial work. अगर उनके शुरू के कामों को देखते तो people शायद कंसिडर ही ना करते कि ये आर्टिस्ट टैलेंटेड भी थे। ये समझ आ गया आपको? पैरा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In my opinion, मेरे ओपिनियन में, to reach the recognizable top, recognize होता है जिसकी पहचान हुए, तो मेरे ओपिनियन में अगर आपने किसी पहचान वाली जगह तक पहुंचना है, even those gifted with talent have to work hard and practice a lot. जिनके अंदर टैलेंट का गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है टैलेंट उनके अंदर, उनको भी हार्ड वर्क करना है और बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। Even the most talented, जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, can lead a life of oblivion. Oblivion क्या होता है? जिसमें कोई पहचान ही ना हो उनकी, oblivion. I'll share. A state in which you are not aware of what is happening around you, usually because you are unconscious or asleep. The state in which something has been forgotten, they will lead a life of oblivion. उनको लोग भूल जाएंगे, no longer famous होंगे, अगर वो प्रैक्टिस करके ज्यादा इम्प्रूव नहीं करेंगे। समझ आ गया ये? Yes, ma'am. So even the most talented can lead a life of oblivion, जिनको लोग भूल चुके होंगे, if they do not polish their art by continued practice. अगर वो continued practice के साथ अपने art को polish ना करें। Conversely, इसके opposite, conversely का ये मतलब है, anyone with a passion and determination, जिसके पास बहुत passion है और determination है, can succeed in creating unique masterpieces of art. वो succeed हो सकता है यूनिक मास्टरपीसेस आर्ट के क्रिएट करने में। दे माइट नॉट बी एबल टू अचीव द सेम लेवल ऑफ सक्सेस, उनकी हो सकता है सेम लेवल ऑफ सक्सेस ना आए एज समवन हु इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग, जैसे कि कोई जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, बट दे कैन स्टिल मेक अ नेम फॉर देमसेल्व्स, तो फिर भी वो अपने लिए एक नाम कमा सकते हैं। टू सम अप, बोथ टैलेंट and hard work have a role in creating art, since both are inextricably linked. The nature versus nature debate has no clear-cut answer and will never have.
तो दोनों का ही मैंने एंड में कह दिया कि दोनों का ही रोल है, क्योंकि दोनों आपस में लिंक्ड है। अब देखो कई लोग हमें कहते हैं कि अच्छा आप डॉक्टर हो, आपके बच्चे तो डॉक्टर ही होंगे। तो मैं कहती क्यों, जीन्स में होती है मेडिकल के जीन्स की डॉक्टर होंगे। इट इज बिकॉज बेसिकली इट इज बिकॉज इफ यू आर ए डॉक्टर और ए टीचर, आपको ना एजुकेशन की वैल्यू पता है, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दोगे वो कुछ भी बने। अच्छी एजुकेशन या वैसा एटमॉस्फेयर दोगे कि पढ़े, तो फिर डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, बिकॉज उनको घर में वो एटमॉस्फेयर मिलता है कि वो अच्छे से पढ़ लें और टेस्ट क्रैक कर लें, एंट्रेंस टेस्ट एंड ऑल। इट इज नॉट बिकॉज कि मेडिकल के या डॉक्टरी के कोई जीन्स है उनके। ठीक है, समझ आ गया पॉइंट। तो दोनों इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। और नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट जो है इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है और ना ही कभी होगा। ये मैंने एंड कर दिया, नहीं भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, ऐसे समझ आ गया आपको? अब अगर एग्जाम में आए तो लिख लोगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अगला ऐसे पढ़ो। रिसर्च इंडिकेट्स दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर बोर्न विद, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमारा जन्म हुआ है, have much more influence on our personality and development than any experiences we may have in our life. पढ़ते ही आपको पता चल गया ये कौन से ब्रॉड टॉपिक कैसे है? Yes, ma'am. नेचर वर्सेस नर्चर पता चल रहा है ना पढ़ते ही? ठीक है। Yes, ma'am. हाँ। Yes, ma'am. तो ये जो ब्रॉड टॉपिक्स है ना, इनके अब देखो जब आप इकट्ठे पढ़ोगे ना, आप ऐसे एक बार आपने अब मेरे साथ गो थ्रू कर लिए, अगर आपको दोबारा बहुत कम टाइम लगेगा। इस टॉपिक पे आपको थोड़ा हटके भी टॉपिक आ गया तो भी आप लिख लोगे। मेरी एक स्टूडेंट है, पिछले साल जुलाई में उसका एग्जाम हुआ था और मैंने उसके एग्जाम से हफ्ता पहले नेचर वर्सेस नर्चर डिस्कस करा। उसको टॉपिक आया कि जो लीडर्स होते हैं वो, कई लोग कहते हैं लीडर्स आर इनबॉर्न और कई लोग कहते हैं कि एनीबडी कैन बिकम ए लीडर। ठीक है, और उसने जो इंट्रोडक्शन में वही लाइन डाल दी, दैट नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट हैज बीन गोइंग ऑन, नो क्लियर कट आंसर हैज बीन फाउंड सो फार, ऐसे शुरू करके फिर उसने कहा सम पीपल से एनीबडी कैन बिकम ए लीडर। तो देखो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया ना कि ये नेचर वर्सेस नर्चर ऐसे है। शी एंडेड अप विद 7 बैंड इन राइटिंग। अब ये वो ऐसे तो उसने करा भी नहीं था, फिर भी 7 आ गए, क्योंकि ब्रॉड टॉपिक की जानकारी थी और वो डल सकता था। अब आपको ब्रॉड टॉपिक समझ आ गया ना, नेचर वर्सेस नर्चर। आपको इस पे कोई भी टॉपिक आया आप हैंडल कर लोगे ना अच्छे से। ठीक है, अब ये देखो इसको हम पढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही ऐसे है कि कुछ लोग कहते हैं कि जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमारा जन्म हुआ है उनका हमारी पर्सनालिटी और डेवलपमेंट पे ज्यादा रोल है हमारे एक्सपीरियंसेस से। समझ आ गया ऐसे? अब आपसे पूछा है कि कौन सा मेजर इन्फ्लुएंस है, विच डू यू कंसिडर टू बी मेजर इन्फ्लुएंस? ठीक है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट हैज बीन अराउंड फॉर एजेस एंड हैज बीन सपोर्टेड वेल बाय बोथ साइड्स। ये बहुत सदियों से चली आ रही है, एजेस से चली आ रही है, एंड इट हैज बीन सपोर्टेड वेल, और ये बहुत अच्छे से सपोर्ट की गई है बाय बोथ साइड्स, दोनों धड़ों से। दोनों साइड्स क्या है, एक कह रही है नेचर, एक कह रही है नर्चर। सो आधे स्टूडेंट जो इधर बैठे हैं वो बोल रहे हैं नेचर नेचर नेचर, जो आधे इधर बैठे हैं वो बोल रहे हैं नर्चर नर्चर नर्चर। वो नर्चर के प्लीज दे रहे हैं, वो नेचर के प्लीज दे रहे हैं। इसको डिबेट कहते हैं। ठीक है, और दोनों साइड्स इसको सपोर्ट कर रही हैं अच्छे से। नेचर रेफरिंग टू हेरिडिटी एंड नर्चर रेफरिंग टू एनवायरनमेंट। नेचर जो कि हेरिडिटी को रेफर कर रहा है, देखो नेचर के बाद मैंने एक कॉमा डाला है और रेफरिंग टू हेरिडिटी के बाद दूसरा कॉमा डाला है, तो मैंने ये 3 वर्ड्स जो हैं वो कॉमास के अंदर करे हैं। और ऐसे ही नर्चर के बाद मैंने कॉमा डाला है और फिर एनवायरनमेंट के बाद कॉमा डाला है। मैंने ये 2 कॉमास के बीच में से मटेरियल डाला है। अब 2 कॉमास के बीच में जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, ऐसे 2 कॉमास को पेरेंथीसिस बोलते हैं। अब इनके बिना आपका सेंटेंस करेक्ट है, उसको पढ़ के देखो। इनके बिना पढ़ना है तो वन ऑफ यू विल रीड। जुबेर रीड करना जरा। कहाँ से मैम? आपने सुना ही नहीं है, नेचर से। Nature. Nature is believed to be what determines our personalities. नहीं, Okay, as I consider. नहीं, आप पढ़ो आईपैड। ये किसका आईपैड नाम? You read it. Nature referring to heredity and आपने कॉमा वाली चीज नहीं पढ़नी ना। okay.
अभी मैंने क्या समझाया, आप सुन नहीं रहे थे सारे? यस मैम, सुन रहे थे। आपने बताया कि बोला, बोलो उसके Ma'am, बिना, Yes, जो 2 कॉमास के बीच का मटेरियल है उसको छोड़ के अपना सेंटेंस बोलो। they can be omitted. Yes, ma'am. हाँ बोलो। Nature and nurture are two very reasonable explanations as to why we are the people we are the people we are today. समझ आ गया आपको? ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। और मैंने नेचर के बाद 3 वर्ड्स डाले हैं और नर्चर के बाद 4 वर्ड्स डाले हैं, उनको मैंने कॉमास के अंदर डाल दिया है, सिंपल कॉमास के अंदर डाला है। इनको पेरेंथीसिस बोलते हैं। दिस इज एक्स्ट्रा मटेरियल, जैसे ब्रैकेट में मटेरियल नहीं डालते एक्स्ट्रा, वैसे डाला हुआ। आपको रीडिंग में ये चीज हेल्प करेगी। रीडिंग में आपको पेरेंथीसिस अगर समझ आ गया, उसको निकाल के पढ़ोगे, आपको सेंटेंस समझ आ जाएगा। अब आपको सेंटेंस इजी नहीं लगा? नेचर एंड नर्चर आर टू वेरी रीजनेबल एक्सप्लेनेशंस एज टू व्हाई वी आर द पीपल वी आर टुडे। आपको समझ आ गया ना एक बार पढ़ के? Yes, ma'am. जैसे मैंने लिखा था वो डिफिकल्ट लग रहा था, समझ आई बात? ये मैंने आपसे क्यों पढ़वाया है? क्योंकि आपको रीडिंग में कई बार बहुत लंबा सेंटेंस होता है, उसका मीनिंग निकालने के लिए ये देखना पड़ेगा, और कई बार आपको हेल्प करती है ये टिप। ठीक है आपका? अब आप बिना उसके लंबा छोटा करके पढ़ो। नेचर एंड नर्चर आर टू वेरी रीजनेबल एक्सप्लेनेशंस एज टू व्हाई वी आर द पीपल वी आर टुडे। अब इजी भी हो गया, छोटा भी हो गया, समझ भी आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा है? नेचर, व्हाट इज नेचर? हेरिडिटी। नर्चर, व्हाट इज नर्चर? एनवायरनमेंट। मैंने उसको बीच में, नेचर रेफरिंग टू हेरिडिटी एंड नर्चर रेफरिंग टू द एनवायरनमेंट are two very reasonable explanations as to why we are the people we are today. I consider that both nature and nurture influence us in different ways, and there is no way to show what has the bigger role. और कोई तरीका ही नहीं है शो करने का कि किसका रोल पड़ा है। समझ आ गया? इंट्रो समझ आ गई आपको? मैम आपने कहा है यहाँ कोई वे नहीं है शो करने का, तो अपने किसकी मैंने कह दिया कि दोनों का रोल जो है, दोनों का रोल अलग है, और ये कहना पॉसिबल ही नहीं है कि किसका बिगर रोल है। मैंने अपना स्टैंड ले लिया, मैंने एक तरह से कह दिया दोनों का रोल बराबर है। Yes, ma'am. कह दिया ना एक तरह से? यस मैम, यस मेरा स्टैंड आ गया ना? ओके। अगर स्टैंड आएगा, योर इंट्रोडक्शन क्वालिफाइज फॉर ए बैंड 7, क्योंकि द कैंडिडेट शुड टेक अ स्टैंड इन द इंट्रोडक्शन। 7 बैंड की डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्टर्स में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला पैरा देखो। नेचर इज बिलीव्ड टू बी व्हाट डिटरमिन्स आवर पर्सनालिटीज, लुक्स एंड अदर थिंग्स because it is all genetically passed down. नेचर हमारी पर्सनालिटी, लुक और बाकी चीजों को डिटरमिन करता है, बिकॉज ये सब जेनेटिकली पास डाउन होता है। इट हैज बीन सीन दैट ए न्यू बॉर्न डज हैव ए सेट ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये देखा गया है कि एक नए बॉर्न बच्चे में इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं जो उसने इनहेरिट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, some of the great legends like Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Kishore Kumar became successful at a very early age, even without much teaching. तो उनमें inborn थे ये traits. Another example is that identical twins reared apart. एक और example मैंने दिया है कि identical twins, जो जुड़वा बच्चे हैं, identical twins, जिनको अलग अलग जगह पे जिनकी परवरिश की जाए, फिर भी उनकी पर्सनैलिटी में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। अगर आप किसी भी 2 अलग अलग जनों को कंपेयर करोगे तो आइडेंटिकल ट्विन्स है। एक आइडेंटिकल ट्विन को इंडिया में उसके मम्मी पापा रेयर करते हैं, बड़ा करते हैं। उसके आइडेंटिकल ट्विन को उसके चाचा चाची ले जाते हैं यूएस से, वहां पे उसको बड़ा करते हैं। बिल्कुल अलग होना चाहिए क्योंकि उनकी परवरिश अलग हुई है, फिर भी देखा गया कि उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं पर्सनैलिटी। तो कोई भी और 2 इंसानों से कंपेयर करो जो कोई इंडिया में है या अमेरिका में, उनसे ज्यादा उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं पर्सनैलिटी की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि जीन्स के थ्रू कुछ तो जाता है। ठीक है, each observation suggests that personality is inheritable to a certain extent. हर ऑब्जर्वेशन ये सजेस्ट करती है कि जो पर्सनैलिटी है उसको कुछ हद तक इनहेरिट किया जा सकता है। पर्सनैलिटी की फेवर में पैरा आ गया, समझ आ गया? यस मैम। मैं आपको एक थोड़ा सा लाइट मूड करने के लिए एक एक्चुअल इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में तो एक बार मैंने एक डिलीवरी करी, तो लड़का हुआ उसके
और वो लड़के ने ना ऐसे, जब छोटा सा 1 आवर का बेबी था, उसने ऐसे करके अंगड़ाई ली और उसकी ना दादी, बच्चे की जो दादी थी, उसकी मदर, मतलब उसकी सास, वो दादी मतलब दादी की भी सास, वो बैठी थी वहां पे, एन ओल्ड लेडी। वो उसका जो फादर था ना उस बच्चे का, उसकी कपड़े की दुकान थी, और वो ना कपड़ा मिलते हैं ना गज से, तो वो पता है क्या कहती, जैसे उसने अंगड़ाई ली, ये कहती है, कह रहा है मुझे गज पकड़ाओ, मैंने कपड़ा मिलना, लुक एट दैट। उन्होंने डिटर्मिन कर दिया, ये तो कपड़े की, इसके फादर की कपड़े की दुकान है, इसने गज मांगा है, मुझे 2 महीने कपड़ा मिलना है, अभी शुरू कर रहा हूँ मैं काम। तो just to make it lighter ना, people have so much sense of humor over there. Okay, so ये हो गया आपका ये पैरा। On the other hand चलते हैं, on the other hand with proper mentoring and practice, mentoring means training, ठीक है। मेंटर क्या होता है आपका, ट्रेनर, ट्यूटर, टीचर। With proper mentoring and practice, any person can achieve success in life. Okay. If a person has an environment in which everybody is in the same profession and are successful in it, there is a great chance that the person will land up in the same profession and will achieve heights, because in that environment he will get proper nurturing. अब आपने देखा होगा कि कई ना वकीलों की फैमिली में बच्चे भी वकील बनते हैं, फिर उनके बच्चे भी वकील बनते हैं, क्योंकि उनके घर में ऐसा एटमॉस्फेयर है, केसेस ही डिस्कस होते हैं सारा दिन, तो बच्चे छोटे होते से ही वो एटमॉस्फेयर में ग्रो कर रहे हैं, और फिर वो इवन ज्यादा अच्छे वकील बन जाते हैं when they become older. ऐसे ही डॉक्टर्स का भी है, फादर मदर डॉक्टर्स हैं, बच्चा डॉक्टर बन गया, घर में भी कई केसेस डिस्कस होते हैं, फिर उसके बाद वो मतलब he goes into the medical line, फिर उनके पेरेंट्स का एक्सपीरियंस भी उसको हेल्प करता है, तो he becomes an even better qualified doctor, better in practice doctor. तो ये मतलब यही है कि जो प्रॉपर मेंटरिंग एंड प्रैक्टिस से एनी पर्सन कैन अचीव सक्सेस इन लाइफ। अगर सिंगर है पेरेंट्स, बच्चा बहुत जन्म से नहीं भी अच्छा सिंग कर रहा, पर उसको घर में अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, उसको ट्रेनिंग मिलती है, पेरेंट्स ट्यूटर लगा देते हैं, मास्टर लगा देते हैं सिंगिंग का, तो वो बच्चा बहुत ग्रेट हाइट्स पे पहुंच सकता है विद प्रॉपर ट्रेनिंग। ये समझ आ गया पैरा? If a person has true dedication, then it can beat talent. अगर किसी इंसान में ट्रू डेडिकेशन है तो वो टैलेंट को भी बीट कर सकता है, मतलब पीछे छोड़ सकता है। यहाँ पे बीट का मतलब मारना नहीं है, पीछे छोड़ना है, हराना है, ठीक है। Various singers, dancers, musicians, businessmen, entrepreneurs did work really hard for years, and because of that they got recognition in the entire world. बहुत से ऐसे सिंगर हैं, डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने बहुत साल बहुत हार्ड वर्क किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको पूरी दुनिया में एक पहचान मिली। समझ आ गया? The more we delve into the topic, जितना हम इस टॉपिक के अंदर delve into कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर गोता लगा रहे हैं, हाँ, the more the evidence, उतना ही हमें एविडेंस मिल रहा है जो रिवील करता है, जो शो करता है that the answer is both. There is a lot people inherit. There is a lot which people inherit from their parents through genes. There is a lot people inherit from their parents through genes, but there is also a lot people pick up by observing their parents. बहुत कुछ है जो लोग जीन्स में इनहेरिट करते हैं, पर बहुत कुछ ऐसा भी है जो लोग अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके पिकअप करते हैं। I believe it is impossible to determine what plays a bigger role. मेरा मानना है कि impossible है determine करना कि किसका रोल बड़ा है। In some cases, people's environment and upbringing might be more responsible for who they turn out to be, and in some cases, it might be their natural inborn qualities they inherited. To conclude, I believe that it is impossible to compare the role of nature and nurture in the development of an individual, as their influence varies from individual to individual. So, जो शुरू में है वैसे ये कि impossible है, वही लिखा मैंने। ये ऐसे अगर अब आया तो अब लिख लोगे, नेचर वर्सेस नर्चर। Yes, ma'am. ओके, अभी जो लीडर वाला ऐसे आया पिछले साल, मैं वो आपको करवा देती हूँ। तो आज के आपके टॉपिक्स जो हैं वो
हो जाएंगे। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बेसिकली नेचर नर्चर का दिखने में लग रहा है पर है नहीं। ये रिच पुअर के है कि जो बच्चे रिच फैमिलीज में, पुअर फैमिलीज में पैदा होते हैं, they are better prepared to deal with problem of adult life than children who are brought up by wealthy parents. तो ये मैंने रिच पुअर से, ये नेचर नर्चर से हटा रही हूँ, ये नेचर वर्सेस नर्चर का टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, अब मैं लीडरशिप वाला ऐसे आपको करा रही हूँ। मैम जीटी में आते हैं ऐसे? आर्ट वाला ऐसे ना जीटी में आया हुआ है, मेरे को ना, ये मैंने जीटी की बुक में डला नहीं है, मेरे से गलती से रह गया है, पर लीडर वाला भी है शायद। मैम इसमें एकेडमिक में और जीटी में सेकंड एसे में कोई फर्क थोड़ी होता है, कोई सा भी आ सकता है ना, एकेडमिक का तो डाल सकते हैं ऐसे नहीं है। जीटी में जो जीटी के ऐसे लिखे हैं ना मैंने पास्ट के, उनके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उनको वही वाले रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो जीटी वालों के 190 एसेस हैं, वो उतना कर लें, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर देम। ठीक है, मैं पढ़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना भी पढ़ा होगा आप उतना पढ़ो उतना ज्यादा अच्छा है। आपको देखो जीटी के स्टूडेंट बैठे हैं ना इस क्लास में, देखो मेरी एक बात सुनो, ये जो एसेज है ना, ये सिर्फ आपको राइटिंग में नहीं हेल्प कर रहे, ये आपको स्पीकिंग में भी आंसर्स देने में हेल्प करेंगे। यस मैम। देखो स्पीकिंग में क्या होता है, व्हाट इज देयर इन स्पीकिंग, फॉलो अप क्वेश्चंस में आपको पूछेंगे, इज आर्ट इनबॉर्न और कैन इट बी लर्न्ड। अब आपने ये ऐसे करे हुए हैं, आपका जो आंसर अब निकलेगा आपके मुंह से, वो ये ऐसे करे बिना निकलता? नो मैम। तो ठीक है, आपको बोलो मैम नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर एजेस, और फिर एग्जामिनर इम्प्रेस्ड। ठीक है, और बैंड्स गिवन। ठीक है, तो आप देखो आपका बोलने में आपको कॉन्फिडेंस, आपको अच्छा ये टॉपिक तो मुझे आता है, एक मन में एक होता है कि ये आता है हम बोल लेंगे इसको, उस वो कॉन्फिडेंस ले आता है फेस पे, और फेस का कॉन्फिडेंस जो है बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने बहुत बैंड लिए हैं, जो कि पूरे कॉन्फिडेंस से गलत इंग्लिश भी बोलते थे, फिर भी उनके 6.5 आए हुए हैं। तो मैं सच बता रही हूँ, कॉन्फिडेंस डज मैटर इन द आइल्स। ओके, या इन स्पीकिंग। सो राइटिंग में भी ऐसे होता है, जब आप जाके क्वेश्चन पेपर देते हैं ना, फिर हम ये तो किए हुए हैं, फटाफट लिख देंगे हम। होता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, जैसे हम पॉलिटिशियन बोलते हैं ना, झूठ आंखों में आंखें डाल के, इतना कॉन्फिडेंस के साथ, वी जस्ट हैव टू स्पीक लाइक दैट। यस। तो देखो आपको पॉलिटिक्स भी करा दी। चलो, some are of the opinion that people are naturally born as good leaders, while others feel that leadership skills can be learned. अब आपको पढ़ते पता चल गया ये नेचर नर्चर ऐसे है। यस मैम। हाँ, ये पिछले साल आया, अब रिपीट तो ये अभी जो ऐसे है ना, ये ज्यादा चांसेस है रिपीट होने के, अगर आपको देखने को मिला ये ऐसे के ज्यादा चांसेस है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, it is believed by some that people are born with certain characteristics that enable them to become great leaders, while others assert that leadership skills are learnable. In this essay, both views will be discussed. Personally, I believe that training and experience can make better leaders than any innate ability. तो मैं तो one sided हो गई हूँ, training and experience better leaders बना सकती है than any innate ability. अब innate ability से leader बनते, तो फिर इसका मतलब जो leaders हैं उनके बच्चे leaders, और जो लीडर्स नहीं है उनके बच्चे कभी लीडर्स नहीं बनते। तो फिर तो आपको पता ही है, अब मैं नाम नहीं लेने चाहिए ना किसी के, अब कई मैम किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए एक्चुअली में, दिक्कत तो यही है। पर आप सबको समझ आ गया मैं किसको पॉइंट आउट कर रही हूँ, बिना पॉइंट आउट के। नहीं तो मैम ये तो बोल सकते हैं, वरना मैं ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की फैमिली से प्राइम मिनिस्टर रहेगा, बाकी तो कोई बन ही नहीं सकता। ठीक है, चलो अब देखो, it is believed by some that people are born, ये मैंने पढ़ दिया। The main reason why some people believe that leadership qualities are inborn is that leadership is based on personality traits which either a person possesses by birth or does not. वो लोग क्यों कहते हैं कि लीडरशिप जो है वो इनबॉर्न है? वो कहते हैं कि लीडरशिप ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती है, जो लीडर्स होते हैं उनमें ऐसी ट्रेट्स होती हैं जो कि किसी भी पर्सन में या तो जन्म से है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु आर नेचुरली आउटगोइंग एंड एक्सट्रोवर्ट, ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं लीडर्स की, आउटगोइंग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, दे गेट फॉलोअर्स, उनको फॉलोअर्स मिलते हैं, वो लीडर बन जाते हैं। Another great leadership trait is handling stress.
एक और लीडरशिप ट्रेट है कि वो स्ट्रेस को हैंडल कर लेते हैं, विच ऑल द लीडर्स फेस एट वन टाइम और अनदर, जो सब लीडर्स को किसी ना किसी समय पे फेस करनी पड़ती है। पीपल्स जेनेटिक मेकअप इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर, लोगों का जो जेनेटिक मेकअप है वो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। एंड दोज हु आर नेचुरली बैलेंस्ड एंड कंपोज्ड हैंडल स्ट्रेस मोर इजीली, और जो नेचुरली बैलेंस्ड है, कंपोज्ड है, वो स्ट्रेस को ज्यादा इजीली हैंडल कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से लीडरशिप कैन नॉट बी टॉट एंड पीपल हु डू नॉट पोजेस दीज नेचुरल ट्रेट्स फेल एट लीडरशिप। और वो कहते हैं कि जिनमें ये नेचुरल ट्रेट्स नहीं है वो लीडरशिप, वो कभी लीडर बन ही नहीं सकते। तो ये पैरा आप लिख लोगे। अब वो क्यों कहते हैं, देखो आपने किसी के व्यू देने हैं, कुछ लोगों के व्यू देने हैं, आपका ये व्यू है नहीं, पर आपने उनके व्यू को अच्छे से लिखना है कि वो क्यों कहते हैं कि इनबॉर्न ही होती है लीडरशिप ट्रेट्स। ठीक है, तो उनका रीजन क्या है कि जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक गुड लीडर को चाहिए वो तो जन्म से ही होती हैं कईयों में, और जिनमें नहीं है वो कभी लीडर नहीं बन सकते। और फिर उन्होंने उन पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात कर दी, वो कौन सी है, आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्ट, हैंडलिंग स्ट्रेस। ठीक है, समझ आ गया ये पैरा? Yes, ma'am. On the other hand, some people think leadership skills are not in a person's DNA and can be learned through experience, education and training. तो बाकी सोचते हैं कि इनबॉर्न नहीं होती, डीएनए में नहीं होती, और एक्सपीरियंस से, एजुकेशन और ट्रेनिंग से लर्न की जा सकती है। एक्सपीरियंस एंड सर्कमस्टांसेस प्रिपेयर पीपल टू डील विद सक्सेस एंड फेलियर। जो एक्सपीरियंस है, सर्कमस्टांसेस हैं, वो लोगों को प्रिपेयर कर देते हैं डील करने में सक्सेस एंड फेलियर को। Good communication skills and formal speaking are the essential traits of leaders and can be learned through formal training and a well-rounded education. Creativity is another leadership skill that parents and good teachers can help children develop. ठीक है, तो जो कहते हैं कि leadership skills develop की जा सकती हैं, वो ये कह रहे हैं कि communication skills, देखो आजकल communication skills की classes होती हैं ना, आप इंजीनियरिंग करने जाओ, कुछ भी करने जाओ, स्पेशली इसका एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये सब्जेक्ट ही इसीलिए बना है कि ये सिखाई जा सके लोगों को, वेल राउंडेड एजुकेशन हो जाएगी उनकी। क्रिएटिविटी भी ऐसी चीज है जो डेवलप की जा सकती है विद ट्रेनिंग। आई बिलीव दैट व्हाइल देयर आर मेनी स्किल्स दैट कैन बी इनबॉर्न, लीडरशिप इज नॉट वन ऑफ देम। तो मैंने अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया विद द लैटर साइड कि लीडरशिप ऐसी कोई स्किल नहीं है जो इनबॉर्न है, and any person can be groomed to master skills for becoming a good leader. It is a fact that children of many groomed मतलब grooming करनी, किसी को groom करना means किसी को मतलब उसको shape देना उसको, good leader उसको बताया जा सकता है। It is a fact that children of many good leaders have failed as leaders, but those with no such background have risen to great heights as leaders. मैंने इनकी example दे दी है। Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, and former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, have risen from humble beginnings and risen to great heights by acquiring such skills. In conclusion, there is no doubt that becoming a good leader is challenging, but this does not mean that only people with innate talent can become good leaders. समझ आ गया ये? ऐसे अब आया तो लिख लोगे, ठीक है? Yes, ma'am. I think इंद्रुप ने लिखा है, जो पिछले साल आया था, I don't remember well. Anyways, so thank you very much for today's class. कौन से स्टूडेंट है वो स्टूडेंट जिसने मुझे रिक्वेस्ट करी थी? मैम मैंने की थी पूजा। अच्छा चलो, आ गया अब आपको, हो गया डिस्कस? यस मैम, मैंने पढ़े भी थे लास्ट टाइम मैम, मेरा एग्जाम है ना सैटरडे, तो मुझे थोड़े से ट्रिकी से लग रहे थे। मैंने कहा एक बार आप करवा दोगे तो इजी हो जाएंगे। हाँ, वो बस करवाने का कुछ नहीं होता, इजी तो फिर कुछ भी एक बार अच्छे से पढ़ लो, इजी लगने लग जाता है। ठीक है मैम, चलो, थैंक यू मैम। You tomorrow we'll do the last passage of reading 6 and we'll also do pie charts. And before doing the pie charts, I would request you, urge you, advise you to go through all the videos I've shared. कि वो आप अच्छे से देख लो, और वीडियो देखने का मतलब है कॉपी पेंसिल हाथ में लो और साथ साथ अपने नोट्स बनाओ। ओके, एक वीडियो में मैंने ग्रामर टच करी है, पाई चार्ट के उसमें एक वीडियो में मैंने पाई चार्ट को टेबल से कंपेयर करके बताया है कि कोई डिफरेंस नहीं है। सो ये सारे देखोगे ना, आपकी लर्निंग बहुत होने वाली है, और कल आपने कहना हमें तो आता है, हमें क्लास की जरूरत नहीं है, बट आई विल बी टेकिंग द क्लास एनीवेज। ओके,
So watch the video nicely. आज देख लो, learning उससे आपकी होनी है. Thank you very much for today's class, attending it nicely. अच्छी strength होती class में, अच्छा लगता है मुझे. Okay then, bye. See you tomorrow. Bye, ma'am. Thank you, Bye, ma'am. Bye, ma'am.